ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ गई सी, ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ नहीं है सी। ना ਅਸੀਂ अपनी भैन का गुसल दवाया। उनके बाबा के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, गलत किया है बाबा ने जी। ये देखेंगे बच्ची है जिसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए हैं कि वो शक करता था। और उस दिन भी यही हुआ है कि जब वो बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस आया है तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे घर में कोई अननोन बंदा आया है। ना वो आप काम नहीं करता जी। उनकी बीवी मेरी केरी भैन है ना, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। कभी कभी हम भूखे भी पड़ जाते थे तो पापा को कोई साहस नहीं होता था। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਨ गठरी वगैरह एक बनाई सी ते बैग ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। पता चला कि उसने घर में एक पड़ा हुआ दुपट्टा साफा नमा, वो उसने उसके गले में डाल के औरत के उसको ज़ोर से खींचे रखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ रुखसाना बीबी की, जिनके भाई अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। और क्या गुजरी होगी कि जब इन्हें फ़ोन आया होगा कि उनकी बहन की लाश जो है वो किसी नाले से मिली है, उसका गला दबा दिया गया है, उसे मार दिया गया है। वो रुखसाना जिसके 2 बच्चे हैं, 12 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उनकी जो बहन है उस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दी जाएगी? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब आपको कॉल आई है पुलिस से तो इस बात को आपको पहले अंदाज़ा था कि मेरी बहन इस करब में है कि उसे मार ही दिया जाएगा? ਮੈਡਮ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਭਣੋਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਭਣੋਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 32 ਚੌਂਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗੁਸਲ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ 18 ਸਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। एक वो कमा रही है, एक वो अपने बच्चे पाल रही है, लेकिन फिर भी उस पर यानी कि एक शक की भी तलवार उसके सर पर लटक रही है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੀ ਲੈ ਦੁੱਧ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਮਾਮਾ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। इनको लेके कौन आया? वही स्कूल से ला के फिर उसने बच्चे भी कहाँ छोड़े? ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਛੱਡਣ ਮਾਮਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਮਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਨ ਗਠਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਗ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। दिन दहाड़े ही यानी कि ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ 7:30 7:30 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਫ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਭਣੋਈਆ ਨਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ दिन फिर असी अपनी भैन पछाण के लिया के। महानूर और मुस्तफ़ा मौजूद हैं जो कि रुखसाना बीबी के बच्चे हैं। महानूर, उस दिन मामा के साथ क्या हुआ था? उस दिन अभी हम सुबह उठे हैं, फ्राइडे वाले दिन की बात है। हम सुबह उठे हैं, मम्मा ने हमें खाना खिलाया, तैयार श्यार किया और पापा ना आए हैं। पापा कहते ये लो दूध पी लो। जैसे बंदा अचानक से गिर नहीं जाता वैसे मम्मा की तबीयत ख़राब होने लगी थी। मम्मा ना गिरने लग गई थी। मम्मा कहती चलो आओ। मम्मा को चक्कर आने शुरू हो गए थे। मैंने कहा मम्मा आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, चलो आओ नानू के घर आपको छोड़ रहा फिर मैं स्कूल चल जाऊँगी। तो कहती नहीं चलो मेरी तबीयत ठीक है, मैं आपको चलो स्कूल छोड़ने जाती हूँ। हमें शुरू से लेके मम्मा ही स्कूल छोड़। मामा के साथ पूरी दोस्ती थी? हाँ जी पूरी दोस्ती थी। तो बाबा की पहले भी लड़ाइयाँ चलती हैं? हाँ जी पहले भी लड़ाइयाँ चलती थी। उसके बाद बाबा से मिले हो जब ये पकड़े गए? नहीं, बस दूर से ही देखा थाने में जब मीडिया वगैरह आई थी ना, उधर पीछे से देखा था। और फिर पापा कहता चलो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही तो मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ। तो पापा मुझे स्कूल छोड़ने आए। मैं ब्राइट 4th क्लास में पढ़ती हूँ, ब्राइट फ्यूचर स्कूल का नाम है। तो फिर जब ये देखा मम्मा के साथ ये हुआ तो फिर बताया सबको कि पापा पहले भी ये करते रहे? जी हम 12 बजे स्कूल से आए हैं तो मम्मा ने कहा सीधा अपने घर आना है, फिर खाना खा के आप चल जाना पढ़ने के लिए मदरसे वगैरह। मैं मदरसे भी पढ़ती हूँ उसका। यानी कि मामा ने स्कूल भी दाखिल कराया हुआ था, मदरसे भी हिफ्स कर रही हो। यानी कि मामा का शौक़ था कि महानूर पढ़े आगे बढ़े, लेकिन बाबा ने ये शौक़ पूरा नहीं होने दिया। अगर कोई भी फीस नहीं पापा ने दी, सिर्फ मम्मा ने जनवरी की पे की, उसके बाद नहीं की। बहुत कंप्लेंट्स आती थी मगर मम्मा ऑफिस वालों को कह देती, सर को कह देती थी, इसलिए हमें पनिशमेंट भी मिलती थी। हम मम्मा को कहते थे तो मम्मा कहते कोई बात नहीं। तो बाबा कमाते नहीं थे? कुछ नहीं कमाते? नहीं, मम्मा जाती थी भाई, एक ही घर था ये डॉक्टर जाफर नहीं, उनके घर करती थी काम, कुकिंग वगैरह करती थी। तो फिर जो पैसे आते थे वो घर में खा पीने भी लग जाते? हाँ जी, पापा नहीं जाते थे तो मम्मा ही लेके आती थी उधर से। जो कभी कभी तो हम भूखे भी पड़ जाते थे तो पापा को कोई सांस नहीं होता था। ऊपर से उन्होंने जो मम्मा आपके सर पे थी वो भी छीन ली? हाँ जी, मम्मा याद आई? बहुत ज़्यादा मम्मा ने सबसे ज़्यादा प्यार किया। बस हम वज़ीर आला पंजाब मिल से कहते हैं हमें इंसाफ मिले और उस मुजरिम को फांसी चढ़ाई जाए और हम इंसाफ मिले। यानी कि बाबा के लिए कोई हमदर्दी नहीं, गलत किया है बाबा ने जी। ये देखेंगे बच्ची है जिसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए हैं और वो किसको अपना दुख बताए। यानी कि अपना मम्मा कह सकती है ना बाबा कह सकती है। क्या करे इंसान ऐसे बाप का जिसने माँ भी छीन ली। स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। ये बच्ची किसको अपना दुख बताए। बहुत बहुत नाइंसाफ़ी की है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। और ऐसे शख्स को ठीक है फांसी चढ़े या उसको सज़ा हो या कुछ हो, लेकिन इन बच्चों के लिए ज़रूर सोचिएगा। जो भी कुछ भी कोई सोच सके ज़रूर सोचिएगा। इसके अलावा हम यहाँ से डीएसपी साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं जिन्हें हफ्ते वाले दिन जो है वो लाश मिली है, उनसे जाके बात करते हैं। थोड़ा सा वक़ुआ बताइएगा किस तरह से। ये वक़ुआ ऐसे शुरू हुआ है कि हमें 15 पे कॉल मिली है कि एक नामालूम डेड बॉडी किसी चादर में लपेटी हुई और उसका एक घुटना नज़र आ रहा है, एक औरत की लाश है वो है। वो कॉल जब मिली तो फिर हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पे मैं ख़ुद पहुँचा, मेरे इंचार्ज SHO और सारे हम लोग वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पर जाकर जब हमने उसको रैप आउट किया उसमें से तो वो पता चला कि ये ख़ातून है 35-40 साल की और बज़ाहिर हमें उस वक्त यही लग रहा था कि इसका गला घोंट कर इसको कत्ल किया गया है, लेकिन अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। हमने उसके ज़रूरी प्रोसेस वगैरह पूरे किए, उसको PFSA और क्राइम सीन यूनिट जो भी एविडेंसेस वहाँ से हमने उठाने थे वो उठाए। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को डेड हाउस में जमा करवा दिया और फिर उसके जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है उसके लवाहकीन की तलाश कि ये औरत कौन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए और इसके लवाहकीन मिल जाए।
क्योंकि जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो तो कातिल का मिलना भी नामुमकिन होता है। तो ये भी ज़रूरी नहीं होता कि उसी एरिया के हो, किसी भी एरिया से हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल तभी होती है कि जब कातिल उसको बहुत दूर फेंकने में कामयाब हो जाए तो फिर ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन इसमें चूँकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये ज़्यादा दूर का नहीं है, इतनी भारी लाश को ज़्यादा दूर से ला के फेंका नहीं जाता और ये जल्दी में फेंकी गई है, तो हमें आइडिया था कि ये हमारे कहीं आसपास के एरिया की होगी। तो वो हमारे रावी रोड का ही एक एरिया है, वहाँ की रिहायशी थी, उसको हमने ट्रेस कर लिया। उसके लवाहकीन हमें मिल गए और हमने जब उनके लवाहकीन से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर को ताला लगा हुआ था और इसका खामद भी गायब है। तो पहले ही स्टांस में हमें पता चल गया कि ये लाजमन इसका कत्ल जो है वो इसके खामद ने किया है। ये इनके गला घुटने का एक आ रहा था, लेकिन अब उसकी मुकम्मल जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो यही इशू था। जी बिल्कुल, वो अब चूँकि मुलज़म भी हमने पकड़ लिया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, मुलज़म काफ़ी दूर चला गया था, फिर भी हमने उसको 72 आवर्स के अंदर अंदर पकड़ लिया। और उसकी जो इंटेरोगेशन हुई उसमें ये पता चला कि उसने घर में एक पड़ा हुआ दुपट्टा साफ़ा नमा वो उसने उसके गले में डाल के औरत के उसको ज़ोर से खींचे रखा और जब तक उसकी जान निकल नहीं गई और वो मर नहीं गई उसने उसका गला नहीं छोड़ा। और जब वो मतलब मर गई तो फिर उसने उसको वो कपड़ों में लपेटा, पहले उसने नायलॉन की बोरी में डाला, फिर उसने एक और चादर में लपेटा, फिर उसको मोटरसाइकिल खींच के फ्लोर से नीचे उतार के फिर मोटरसाइकिल पर रख के उसकी लाश वहाँ पे फेंक के आया। तो सर ये कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह के जरिए? बिल्कुल ये सीसीटीवी फुटेज भी जिस वक्त फिर ये सारा हमने तफ्तीश करनी शुरू की और सारा क्राइम सीन और हमें घर का, तो हमें इसकी इस तरह की सीसीटीवी फुटेजेस भी मिल गई जो कि इंशाल्लाह ताला इस केस की प्रोसिक्यूशन में हमें हेल्पफुल होंगी। अच्छा सर, कोई बच्चे भी थे? जी 2 बच्चे थे। इस मकतूला जो है इसका एक बेटा है एक बेटी है और वो दोनों स्कूल गोइंग हैं। वो दोनों स्कूल गए हैं सुबह, तो उसके बाद इसके बाप ने आके इससे लड़ाई की है और लड़ाई बस बात बढ़ी है और उस पर फिर ये मामला। सर वो क्या कोई जहनी मरीज़ था या कोई ऐसा ही कर दिया कि सर मार ही देते हैं, इतना जिगरा कहाँ से ले आते हैं? बस जो जराइम पेशा आदमी होता है ना, जो जुर्म करता है, उसका मेंटालिटी उस वक्त क्या हो जाती है ये असेस करना मुश्किल है। साइको इस तरह से वो नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, उसके बच्चे थे और था, लेकिन लड़ाई चूँकि वो शक करता था और आपको पता है कि शक एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ों को बहुत गलत रुख पे ले जाती है। उस दिन भी यही हुआ है कि जब वो बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस आया है तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे घर में कोई अननोन बंदा आया है। इसी बात पे बात बढ़ी, वो औरत भी बोली और ये भी बोला। उसके बाद फिर इसने फ़ैसला किया और इसने उसके गले में दुपट्टा डाल के उसको मार दिया। सर अब मुल्ज़िम जो है वह पकड़ा गया है और अब आगे उसकी ट्रायल होगी? जी बिल्कुल, मुल्ज़िम इस वक्त हमारे पास रिमांड पे है और हम उसके ख़िलाफ़ जो भी सीसीटीवी फुटेजेस या जो भी हमें कोई शवाहिद मिलेंगे हम उनको अपने पास लाएंगे। जो लवाहकीन हैं उनके बयानात वगैरह लिए हैं और हम अपनी प्रोसिक्यूशन की मदद से कोशिश करेंगे कि इसको इसके जुर्म की सज़ा मिल जाए। अच्छा सर, एफआईआर जैसे आपने पहले भी बताया कि एफआईआर पुलिस की मदय्यत में दर्ज हो जाती है, तो जब लवाहिकीन का पता चल जाए तो क्या वो दोबारा से एफआईआर कराते हैं या उनके बयान ही इसका हिस्सा बनते हैं? नहीं, एफआईआर तो जो भी एक इंसिडेंट हो, एक वाक़े की एक ही एफआईआर होती है। एफआईआर मेन वही स्टैंड करती है जो पहले रहती है, क्योंकि जिस तरह से इंसिडेंट हमें मिला, जैसे हमें पता चला, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो वैसे दर्ज हो गई। उसके बाद फिर जो लवाहकीन होते हैं वो 161 की आ जाते हैं, उसमें उनके बयानात आ जाते हैं। अब आगे जो पूरा केस चलना है ये इनके बयानात की रोशनी में चलना है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।